بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيٌّ وَأَيَّةٌ کا من اور ایٌ اور ایتن یہ من کی طرح ہیں۔ یہ بین سطور لکھا ہے فی الامور الاربعۃ، چاروں چیزوں میں۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسماء موصولات میں سے ایٌ اور ایتن جو موصولہ ہے اس کی آگے اقسام بیان فرما رہے ہیں۔ ایٌ یہ مذکر کے لیے الذی کے معنی میں، اور ایتن یہ مؤنث کے لیے آتا ہے التی کے معنی میں آتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایٌ اور ایتن بھی اپنی اقسام کے اعتبار سے یہ من کی طرح ہے، من موصولہ کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح من موصولہ یہ استفہامیہ بھی ہوتا ہے، موصولہ بھی ہوتا ہے، شرطیہ بھی ہوتا ہے اور موصوفہ بھی ہوتا ہے، اسی طرح ایٌ اور ایتن استفہامیہ بھی ہیں، شرطیہ بھی ہیں، موصولہ بھی ہیں اور موصوفہ بھی ہیں۔ ایٌ اور ایتن موصوفہ کی مثال ہے، جیسے یہ نیچے لکھے ہوئے ثم لننزعن ایہم ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ یہاں ایہم یہ صفت کیا کہتے ہیں اس کو، موصولہ ہے الذی کے معنی میں، اور اسی طرح ایٌ اور ایتن استفہامیہ بھی ہوتے ہیں، جیسے ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، اور اسی طرح ایٌ اور ایتن شرطیہ بھی ہوتے ہیں، جیسے ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اور اسی طرح موصوفہ بھی ہوتے ہیں ایٌ اور ایتن، جیسے یا ایتها النفس المطمئنہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صفت کا ذکر نہیں کیا، من صفت کے لیے بھی آتا ہے لیکن ایٌ اور ایتن کے صفت کے لیے ہونے کو تو ذکر نہیں کیا، صرف یہی چار صورتیں بیان فرمائیے، حالانکہ ایٌ اور ایتن صفت کے لیے بھی آتا ہے۔ پیچھے قافیے میں یہ مثال گزری ہے، مررت برجل ای رجل، مررت بامرأۃ ای امرأۃ، اس میں ای اور ایت یہ دونوں صفت کے لیے ہیں، لیکن مصنف رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو ایٌ اور ایتن 5 طرح استعمال ہوتے ہیں، موصولہ، موصوفہ، استفہامیہ اور شرطیہ، اور 5ویں قسم ہے صفت کے طور پر استعمال ہونا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے صرف 4 کو ذکر کیا۔ وَهِيَ مُعْرَبَةٌ وَحْدَهَا إِلَّا إِذَا حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا اعراب بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسماء موصولات جو 18 پیچھے ذکر ہوئے ہیں ان میں صرف اور صرف یہ ایٌ اور ایتن جو ہیں یہ معرب ہیں، باقی سارے موصولات مبنی ہیں، صرف یہ معرب ہیں، اور وہ بھی اپنی 3 صورتوں میں، کیونکہ ان کا استعمال 4 طرح سے ہوتا ہے، تو ان 4 میں سے 3 حالتوں میں معرب ہیں اور ایک حالت میں مبنی ہیں، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ایک حالت کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں یہاں مبنیات میں ذکر کیا ہے، باقی اس کی 3 حالتیں جو ہیں وہ معرب کی ہوتی ہیں، اور وہ 3 حالتیں معرب کی اور چوتھی حالت مبنی کی جو ہے وہ اس طرح بنتی ہے کہ ایٌ اور ایتن مضاف ہوں اور صدر صلہ یعنی صلہ کا جزء اول وہ بھی مذکور ہو، جیسے ایہم ہوا قائم،
इसमें अयो मुसाफ है हूँ ज़मीर की तरफ, और कायमुन हुआ कायमुन मुब्तदा खबर, इसका इसमें हुआ सिजर का पहला हिस्सा है, मुब्तदा है, ये मज़कूर है। अय्युहुम हुआ कायमुन। और दूसरी सूरत यह है कि मुसाफ ना हो लेकिन सदर सिला मज़कूर हो, जैसे अय्युन हुआ कायमुन। अय्युन मुसाफ नहीं है लेकिन सिले का जो पहला हिस्सा है जो मुब्तदा वो मज़कूर है, हुआ कायमुन, हुआ मौजूद है मुब्तदा। तीसरी सूरत यह है कि ना मुजाफ हो ना सदर सिला मज़कूर हो। अय्युन कायमुन, इसमें अय्युन मुजाफ नहीं है, सिर्फ बगैर इजाफत के, और कायमुन खबर है, इसकी मुब्तदा हुआ वो भी महजूफ है। ये तीन सूरतें हैं, इन तीन सूरतों में अय्युन और अय्यतुन ये मोरब होते हैं। और चौथी सूरत यह है कि ये मुजाफ तो हों लेकिन इनका सदर सिला मज़कूर ना हो, जैसे आयत ऊपर गुजरी थी अय्युहुम अशद्दु अला रहमानी एतिया, इसमें अय्यो ये होम ज़मीर की तरफ मुजाफ तो है लेकिन इसके सिले का पहला हिस्सा वो महजूफ है। असल में अय्युहुम हुआ अशद्दु अला रहमानी एतिया, हुआ मुब्तदा को हज़फ कर दिया गया और खबर उसके खबर को जिक्र किया गया। तीन सूरतों में ये मोरब है और चौथी सूरत में ये मबनी है। मबनी होने की वजह ये है कि ये अपने माना की तकमील में जुज़ अव्वल के सिले के जुज़ अव्वल के मोहताज होते हैं। तो मोहताज चूंकि हरफ होता है कलमे की तीन अक़साम में से, तो गोया के इस हालत में वो हरफ के मुशाबे हैं। और बाकी जो तीन सूरतें हैं उन तीन सूरतों में ये मोरब होते हैं, और मोरब होने की वजह यह है कि ये असल में मुज़ाफ होते हैं, और इजाफत क्योंकि इसम का खासा है इसलिए मोरब कहलाते हैं। इसमें मोरब का खासा है इजाफत, इसलिए इन तीन सूरतों में वो मोरब होते हैं। वही मोरबतुन, और ये मोरब होते हैं इल्ला इज़ा हुज़िफ़ा सदरु सिलतिहा, मगर उस वक़्त के जब इनके सिले का पहला हिस्सा महजूफ हो, जुज़ अव्वल महजूफ हो। वफ़ी माज़ा सनाता वजहान है। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माज़ा सनाता जैसी मिसालों में दो सूरतें पढ़नी चाहिए। माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, माज़ा युनफिकून, माज़ा फ़अलतुम, इस तरह की सारी जितनी भी मिसालें बने, इस तरह की मिसालों में दो सूरतें पढ़नी चाहिए तरकीब के एतबार से। पहली सूरत यह है कि मा जा में मा अलग हो और जा अलग हो, दोनों अलग अलग। अहदुमा मा अल्लज़ी, यानी मा अलग हो जा अलग हो, मा इसमें इस्तिफाम हो, आयुशैन के माने में हो, और जा ये मौसूल हो, अल्लज़ी के माने में हो। तो मा जा सनाता का माना होगा अय्यु शैइन अल्लज़ी सनाता, कौन सी वो चीज है जो आपने की है, कौन सा वो काम है जो आपने किया है। अय्यु शैइन ये माँ का माना हो जाएगा और जा का माना अल्लज़ी हो जाएगा। अय्यु शैइन अल्लज़ी सनाता, इस सूरत में जवाब हो रफ़न, इसके जवाब में रफ़ा आएगी। मसलन इसके जवाब में आता है खैरुन, तो ये खैरन होगा मरफू, इसलिए कि ये खबर है, इसकी मुब्तदा महज़ूफ है, लिहाजा पूरी सवाल जवाब की इबारत होगी अल अय्यु शैइन अल्लज़ी सनाता, जवाब आएगा अल्लज़ी सनातुहु हुआ खैरुन, क्योंकि खबर को आपने मौसूल सिले के साथ जिक्र करना है। मौसूल सिले की खबर तो अखबार में अल्लज़ी का जो तरीका है उस तरीके के मुताबिक तकदीरी इबारत बनेगी। अल्लज़ी सनातुहु हुआ खैरुन, वो काम जो मैंने किया है वो बेहतर है, वो खैर है।
दूसरी सूरत ये है वल आखिर अय्यु शैइन, दूसरी सूरत ये है कि मा जा दोनों मिलकर एक चीज बने। इस सूरत में मा जा मिलकर दोनों, ये इसमें इस्तिफाम होकर, जैसे यहाँ सनाता फेल है तो इस तरह के फेल का मफूल भी मुकद्दम बनेंगे। और माजा पूरा इसमें इस्तिफाम अय्यु शैइन के माने में होगा। माजा सनाता का की तकदीरी इबारत होगी अय्यु शैइन सनाता, अय्या शैइन सनाता, अय्या शैइन ये हो जाएगा मफूल मुकद्दम, और सनाता ये फेल बफाइल मुअख्खर हो जाएगा, क्योंकि मफूल मुकद्दम इसलिए होगा कि ये अल्फाज इस्तिफाम की सूरत में, और अल्फाज इस्तिफाम को सदारत कलाम जरूरी होती है, इसलिए इसको मुकद्दम कर दिया। इस सूरत में मुसन्निफ फरमाते हैं जवाब नस्बन, इसका जो जवाब आएगा वो मंसूब होगा। ये कि इस सूरत में इसका जो जवाब आएगा वो असल में पहले महजूब का मफूल भी होगा। अय्या शैइन सनाता, जवाब सनातु खैरन, फेल चूंकि सवाल में मौजूद था तो जवाब से उसको हज़फ कर दिया, सनातु खैरन। कुरान करीम में इसकी कई मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा की आयत है यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुलिल अफ़, माज़ा युनफिकून माज़ा सनाता की तरह है। अगर माज़ा में माँ को अलग अय्युशैन के माने में लेकर इसमें इस्तिफाम बनाए, और जा को अल्लज़ी के माने में लेकर इसको मौसूल बनाए, तो माज़ा युनफिकून का माना होगा अय्यु शैइन अल्लज़ी अनफकू या युनफिकूना, अय्यु शैइन अल्लज़ी युनफिकूनहु सिलबी का आयत भी होगा। तो इसके जवाब में अल अफ़्व मरफू आएगा, अल्लज़ी युनफिकूनहु हुवल अफ़्व, मुब्तदा की खबर, मुब्तदा महज़ूफ की खबर होगी अल अफ़्व। और दूसरी सूरत ये कि माज़ा पूरा युनफिकूना का मफूल मुक़द्दम हो, अय्या शैइन युनफिकूना, तो जवाब है कि अनफिकू अल अफ़्व, तो ये मंसूब होगा। इसी तरह माज़ा अंदला रब्बुकुम के अंदर ये दो सूरतें, दोनों सूरतें आ सकती हैं। व अय्युन व अय्यतुन का मन, अय्युन और अय्यतुन ये मन की तरह है चार बल्कि पांच सूरतों में। वह मोरबतुन, और ये मोरब होते हैं वाहदा अकेले, सारे अस्माए मौसूलात में से अकेले ये मोरब है। इल्ला इज़ा हुज़िफ़ा सदरु सिलतिहा, इल्ला ये कि जब उनके सिले का पहला हिस्सा हज़फ कर दिया जाए, तो इस सूरत में ये वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, मबनी होते हैं। वफ़ी मादा सनाता वजहाने, और मादा सनाता जैसी इबारतों के अंदर दो वजह पढ़नी जायज़ हैं। अहादुहुमा, पहली है मा अल्लज़ी व जवाब रफ़न, और इस सूरत में इसका जवाब मरफू होगा। वल आखिर, और दूसरी है अय्यु शैइन, और व जवाब नस्बन, और इसका जो जवाब होगा वो मनसूब होगा। ये मौसूलात की बेस मुकम्मल होगी। आगे अस्माए अफ़ाल हैं, ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे अस्माए अफ़ाल। बात समझ आइए भाई।
جی استاد جی۔ جی استاد جی۔ جی طاہر صاحب آپ کوئی کہہ رہے تھے؟ جی استاد جی۔ طاہر بھائی کچھ کہہ رہے تھے میں